Today we are going to talk about the guts to leave what's not really working out for you. And भले आपने उसमें बहुत साल डाले हों. So hi, my name is Simran. Today is going to be a life update plus talk about how to actually find guts to leave what's not really for you. And this is my Jeera drink. It's 5 a.m. in the morning. In the past 3 months, I have dropped very big things. Like one of them was a particular section. Like I have been attached to this particular clientele, set of clientele that we were doing this one. Let's say social media. I can't disclose it. So let's say social media. तो हम सोशल मीडिया के बहुत सारे क्लाइंट्स कर रहे थे बट दैट वाज जस्ट रोटेटिंग इन अ लूप एंड बहुत प्रॉब्लमैटिक हो रहा था. So we found guts to just drop it down. It was minting a lot of money. But then it was also ruining the long term, right? बहुत ज़्यादा बर्बादी वो हमको लॉन्ग टर्म में दे रहा था. So we had to step it down. And then I was doing comedy content. I had some 1200 posts. And for 4 years I was doing it. 2 years it was fun. बहुत मज़े आ रहे थे. Rest 2 years I did because of the force that people are following me and I can't just help that. ठीक है. And third thing, I was doing business content on another profile. And then I had to develop it in a particular way, but in a tech format, but I really could not do it. So we did that. And मैंने वो सारा पुराना जो content है वो delete कर दिया. So I basically rebuilt. I just left off. I put things down from scratch and just restarted. And ये guts बहुत आसानी से नहीं आए हैं. Obviously it's taken me a lot of time. So we'll talk about that today. So hi, my name is Simran. If I introduce back again, I do create tech and develop businesses. It has taken me 7 to 8 years to learn life and business. And in all this whole phase, life has been very, good to me. It has humbled me in a lot of ways. And इस पूरे लूप में एक बहुत बढ़िया चीज़ मैंने सीखी जो है कि लेटिंग गो ऑफ व्हाट इज़ रियली नॉट वर्किंग आउट फॉर यू. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सोचना बंद कर दो कि ये चीज़ चली गई तो मेरा क्या होगा. ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आप छोड़ दो और आप उसके बिना सांस ना ले पाओ. ऐसा है ही नहीं. ठीक है, इवन अ ह्यूमन कैन ड्रॉप ऑफ सर्टन फूड आइटम्स एंड लिव. इंसान बहुत सारे आज ऐसे भी हैं जो बहुत लिमिटेड फूड अमाउंट्स में जी रहे हैं, पर वो उन लिमिटेड फूड अमाउंट्स में वो उनको मिल जा रहा है जो उनको चाहिए. मे बी प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर. सो trust me when I say this, there's literally nothing except breathing in the planet, that breathing, food, obviously the basic things that you can not live without. So if you at all in the loop of social media are thinking that कहीं से भी कोई इंसान, कोई पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल, कोई पर्टिकुलर सोशल मीडिया चैनल, कोई पर्टिकुलर ऑडियंस, कुछ भी. ओके, आई हैड 27,000 फॉलोअर्स एंड आई वाज लाइक लेट इट बी. एंड मुझे ये करने के लिए 2-4 साल लगे बिकॉज फॉर 2 years आई वॉज डूइंग इट फन एंड देन इट वॉज नॉट इंक्रीजिंग बिकॉज आई वॉज रियली नॉट इंटरेस्टेड. आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई अब तो ऑडियंस है, अब तो क्या कर सकते हैं, वी कांट जस्ट रिप इट ऑफ. आई जस्ट कांट रीबिल्ड माई आइडेंटिटी. बट देन आई डिड. इवन ट्रस्ट मी, इवन इट वुड बी 100K, 200K, जितने भी नंबर्स बड़े भी होते तो I had those guts to rebuild my whole identity on the internet or on the planet because I'm an entrepreneur. I'm supposed to learn how to fail and rebuild again. So अब आपको ऐसा लगेगा ना इन द स्पायरल मोड कि भाई नहीं ये इंसान या ये पर्टिकुलर बिजनेस या ये चीज़ इसकी वजह से मैं कैसे रहूँगा, कैसे रहूँगी. तो वो लूप ऑफ अटैचमेंट आपको पागल कर देगा. बट वो लूप ऑफ अटैचमेंट में आप रहो ही मत एंड कट इट डाउन देयर जहाँ आपको ये समझ आएगा कि द मोर टाइम यू आर टेकिंग टू लीव दिस, मोर टाइम यू आर वेस्टिंग ऑफ गेटिंग वॉट इज़ फॉर यू. है ना, ये मैंने बहुत मुश्किल तरीके से सीखा है. आई जस्ट सजेस्ट यू टू इट्स नॉट दैट. देखो अभी बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स या बहुत सारे लोग या बहुत सारी अटैचमेंट्स या बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, पर जरूरी नहीं है वो आपके लिए हो. ठीक है, there might be somebody telling you that trading would work out for you, but if it's not working out for you, can't stick by कि उसने बोला है. ठीक है, you will have to stick by only if it's really working out for you. So just sit with the thought that is it really working out for me, am I just in the loop. ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेकेंड अबाउट स्केलिंग. आई थिंक जितना भी आज तक हमने स्केल किया है
there has been only one right thing that we did, and it was बिल्डिंग द कोर टीम फर्स्ट. बहुत टाइट कोर टीम, 6 लोगों की टीम तो होनी चाहिए, तगड़ी एकदम, जो कितनी भी बड़ी केओस मेस से निकाल ले आपको. सेकेंड चीज़, यू रियली नीड अ गुड सिस्टम, कि आपका पूरा काम किस प्रोसेस में होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फॉर द ई-कॉमर्स, पहले वेबसाइट बनना चाहिए, फिर सोशल मीडिया, फिर मार्केटिंग, परफॉर्मेंस, लाइक स्टेप बाय स्टेप, राइट. आपका ऊपर सिस्टम डेवलप्ड होना चाहिए, एंड इट शुड बी मतलब ऑटोमेटेबल इफ इज द वर्ड, बट ऑटोमेट हो जाना चाहिए आपका बिजनेस. सो आफ्टर अ पॉइंट एटलीस्ट इट शुड बी 50% ऑटोमेटेड. यू शुड नॉट बी फंक्शनली इन्वॉल्व इन टू द होल पार्ट ऑफ everything that's happening in your business. And the third thing, your ethics and values. आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा एथिक और कौन सा, आई नो एट अ यंग एज a lot of people are starting with working off. आजकल people at 18 are starting with their businesses, and it's good, it's really good. But understand, आपको अगर पहले दिन से अपनी ethics और values नहीं पता है, I think when you grow up, you usually question the worth of everything that you're making, maybe money, maybe anything else. So I think सबसे पहली एथिक तो नियत आती है, बाकी तो लाइक यू शुड बी गुड इंटेंट, अदरवाइज थिंग्स रियली डोंट वर्क आउट फॉर यू. सो दैट्स देयर. एंड बाकी स्केलिंग में आपका अगर 3 चीज़ें क्लियर है, योर सिस्टम, योर वैल्यूज एंड एथिक्स, योर सेंटर गोल ऑफ व्हाट टू कॉल इट, सिस्टम, द कोर टीम, तो आई थिंक थिंग्स अल्टीमेटली वर्क आउट फॉर यू. तो पहले ये तीनों चीज़ें क्लियर रखो, उसके बाद ही फंडिंग, स्केलिंग, SKUs इन सब के लिए जाओ. जब तक आपका फंडिंग या बेस क्लियर नहीं है, जब तक आपका ये 3 चीज़ें क्लियर नहीं है, तब तक कोई सेंस ही नहीं है इस बात का कि आप स्केल कर रहे हो. इट्स अ वेरी स्टूपिड आइडिया एंड डिसीजन, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. जस्ट फ्रॉम माई स्टोरी यू लर्न कि एक्सपांड करना, ट्रायल करना बिल्कुल गलत नहीं है. जस्ट नो दैट देयर बी अ पॉइंट इन लाइफ जब आप रिस्क, प्रॉफिट, लॉस, सक्सेस इन सबको लेके ना बहुत न्यूट्रल हो जाओगे. लाइक me at this point, I really need more solitude. I need really more let's say I'm very comfortable. Like my win, आजकल मुझे खुशी इस बात की होती है सुबह कि मैं 5 बजे उठ गई, मैंने दिन भर क्लीन खाया, I cleaned my room on time, and I finished my to do list. मुझे इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता that whatever I'm achieving in life is big, or we're launching big products or procedures. सो नो दैट जिंदगी में एक समय आएगा जब आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाएगा बहुत सारी नश्वर चीज़ों से. सो फाइंड द एथिक्स एंड वैल्यूज दैट विल ऑलवेज कीप यू हैप्पी इन लाइफ. है ना, देयर आर सर्टन, लाइक माई प्राइमरी एथिक इज बीइंग गुड इंटेंट टू पीपल एंड लर्न गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग. लाइक जाकिर खान साहब ने कहा था एक बार कि देते रहो, देते ही जाओ और सोचो मत कि वापस कुछ आने वाला है. और उतना ही दो, ऑब्वियस देने का भी तो लिमिट है ना, उतना ही दो जितना आपको देना है. एंड फिर अब जो अगली बार आपकी इच्छा होगी देने की तो आप वापस देना. नहीं तब तक जस्ट बॉर्डर लाइन, तब तक जस्ट keep the good intent with yourself, just keep the good things with yourself, and don't expect a lot from the world, because the universe will ultimately harm you so much when you keep on expecting. So today's raw gyan, from life update to gyan to scaling, was this. And make a lot of money, keep going very happy, and if there's anything that you think life needs to fix you with, so we can really talk about. And okay, that's Surendra Veja, entrepreneur, tech maker, and a lot of things that she's going to be signing off. Make a lot of money, be very happy, and subscribe.